Hello students, now this is our fourth session of e-learning, and in this session we are going to see the details regarding want and utility. What is want, what is the nature of want, and what is utility, features of utility and utility curve. Here want. Earlier we have seen what is want. Want means wish or will to have a particular product or a commodity. Now the nature of human wants. As we have seen that the wants of human beings are always unlimited and resources or sources to satisfy these human wants are limited. मतलब स्केयर. नाउ वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव. वांट कैसी रहती है? वांट इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड इट इज रिलेटिव. वांट वेरी with time, place and person. Obviously a person who is staying in Maharashtra, utility for a particular product, जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट the people are mostly using this product as compared to the person who is in केरला. केरला में क्या होता है जनरली, मतलब जो टाइम है, जहाँ जो प्लेस है जहाँ पे वो इंडिविजुअल रहता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट्स की, वो कमोडिटीज़ की जो वांट है वो डिफरेंट रहेगी, और जो मान लो कोई पर्सन है जो अदर स्टेट में रह रहा है, उसके लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वांट है वो कम रहेगी. जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोकोनट. कोकोनट, द प्रोडक्शन of that particular coconut is more in Kerala as compared in Maharashtra. So इसलिए उसकी जो want है, the want of that particular commodity is different. So it varies with time, place and person. Some wants reoccur again whereas others do not occur again and again. ठीक है? Wants may becomes habit and customs. Now habit. It happens. जैसे कि आपको रेगुलरली मान लो फॉर एग्जाम्पल यू ऑलवेज लाइक टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स. ठीक है ना, आपको तो दैट वांट और दैट विश ऑफ ड्रिंकिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक बिकम्स योर हैबिट. That is what is wants may become habits and customs. Want are affected by income, taste, fashion, advertisement and social custom. This is more important. Wants are affected by income, by taste, fashion and advertisement. Obviously the person who is earning 10,000, ठीक है, in his earlier job he will earn 10,000. Okay, but as he grows, he gains more and more experience, his income increases, and as the individual's income increases, his wants are always different, or his wants are always maybe changing. So taste, the same thing is applicable to taste, फैशन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल कस्टम. जैसे कि टेस्ट में और फैशन में कैसे बोल सकते हो आप, जैसे कि आप यंग होते हो, फॉर एग्जांपल 20-21 ईयर्स के हो, तब आपको पिज्ज़ा, बर्गर है या फिर ऑल अदर थिंग्स है, जो आजकल के जो फैशन में जो टेस्ट होती है उसके हिसाब से आपकी टेस्ट रहेगी. बट एज यू ग्रो ओल्ड तो आपकी टेस्ट भी क्या है, चेंज होती है. फैशन ऑल्सो चेंजेस. जो भी रिसेंट फैशन रहेगा वो जनरली यूथ जो है, यंग पीपल ऑफ द सोसाइटी है, वो फॉलो करते हैं, और जब आप वो एज में हो तब आपको वही फैशन अच्छी लगती है. बट एज यू ग्रो ओल्ड automatically your fashion also get changed and ultimately it affects on the want. Okay, now wants are unlimited in number, they are never completely satisfied. Human being is never satisfied with what he or she is having. So whatever the wants, they are unlimited in number, the resources to satisfy these wants are limited, and these wants are never completely, that he or she is never completely satisfied with the want. Wants differs in intensity, some are urgent, some are felt less intense. Now what is utility? ठीक है, what is utility? Utility is a want satisfying power of a commodity. That is why we have seen want first. ठीक है, so utility is a want satisfying power of the commodity. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक कमोडिटी है, उसको क्या है, यू वांट दैट कमोडिटी, सो दैट बिकम्स यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट कमोडिटी. वो आपकी मतलब इस द अनदर नेम ऑफ यूटिलिटी मे बी अ यूजफुलनेस. ओके, या the urgency of that particular commodity that varies from person to person. Consumer buys only those commodities where he derives some benefit in the form of satisfaction.
and that is why utility is a want satisfying power of a commodity. कंज्यूमर हमेशा वही प्रोडक्ट्स को, वही कमोडिटीज को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, वेयर ही डिराइव सम बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लो आपको कोई एक प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मतलब यू डोंट वांट दैट प्रोडक्ट, देन यू विल नेवर बाय दैट प्रोडक्ट, बट यू विल बाय ओनली दोज प्रोडक्ट्स वेयर he or she derives some benefit, and that benefit ultimately get turns into satisfaction. So the benefit or a satisfaction of a want by a consumer is known as utility. Correct है? समझ में आ रहा है? The benefit or a satisfaction which an individual earns after utilizing that particular product is what is utility. Utility is subjective and relative term. Now utility is subjective and relative term means the want or the need of the particular commodity may be different from person to person, from place to place, and that is why in earlier slide we have seen it is subjective and relative. Okay, utility is a cardinal approach, utility is a cardinal concept, it means utility can be measured. We will see in further slides how it can be measured. नाउ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी कैसी है? रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। रिलेटिव मीन्स और सब्जेक्टिव मीन्स क्या है? इट डिफर्स फ्रॉम टाइम, प्लेस एंड पर्सन। द वांट ऑफ अ वूलन क्लोथ्स इज मोर in the month of winter or in winter session, but the want of woolen cloth is less important or importance, or it has a zero importance in the month of rainy season or summer. Okay, so it depends on the particular season or it depends on that particular concept. मतलब जो relative है, आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कमोडिटी की जो अर्जेंसी है, जो नीड है, वो वांट है, वो कैसी है? रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ यूजफुलनेस, बट इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. फॉर एग्जाम्पल, मान लो देर आर टू फ्रेंड्स, ठीक है, एक फ्रेंड के पास साइकिल है और दूसरे फ्रेंड्स के पास क्या है? बाइक है. लेकिन वो जिसके पास में बाइक है और जिसके पास में साइकिल है, वो जो पर्टिकुलर आपका फ्रेंड है, द फ्रेंड हु इज हैविंग बाइसिकल, उसके लिए बाइसिकल का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना उसके फ्रेंड के लिए बाइक का है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट मे डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. वो पर्सन को वो पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूजफुलनेस कितनी है, उस पे उसकी यूटिलिटी डिफर करती है. इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. न्यूट्रल कंसेप्ट मीन्स व्हाट? क्या है? एज वी हैव सीन कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. हाउ इट कैन बी मेजर्ड? इथिकली न्यूट्रल. वैसे देखा जाए तो वो न्यूट्रल है, बट when we take example of any specific commodity, then it is a cardinal concept or which can be measured. We will see further. Now utility differs from pleasure. Now how it differs from pleasure? Okay, in pleasure means कार है या फिर जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो लग्जरियस है, कंफर्ट वाले प्रोडक्ट है, दैट गिव्स द प्लेजर. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अनिल. ओके, मिस्टर अनिल, he is doing his traveling by railway, but at the same time his friend, or we can say the other person who is affording a air flight or air journey. It means what? जो अनिल को प्लेजर किस में मिल रहा है, वो सेम पर्सन को किस में मिलेगा? रेलवे जर्नी में मिलेगा? नहीं मिलेगा. उसको किस में मिलेगा वो प्लेजर? बाय एयर ट्रैवल करेगा उसमें ही मिलेगा. बट इनके लिए क्या है? द पर्टिकुलर थिंग और ही वांट्स टू यूटिलाइज दैट थिंग, उसके लिए द रेलवे जर्नी ही कैन अफोर्ड एंड ही इज गेटिंग satisfying his need with the help of railway, not by the air. So utility differs from pleasure. Pleasure अलग है, utility अलग है. Utility differs from satisfaction. Of course it is a want satisfying power of a commodity, but it is not exactly the satisfaction. Measurement of utility is hypothetical. Utility is multi-purpose. Utility depends on the intensity of want. Utility is the basis of demand. ठीक है, बेसिक डिमांड मतलब जब तक आपको कोई प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, वांट नहीं है, तब तक आपको यूटिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा. सो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज
इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड, डेप्थ क्या है वो बॉन्ड की, उस पर आपकी यूटिलिटी डिपेंड करती है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये हमको देखना है। जैसे कि आपको पता है कि डेली व्हेन यू आर हंग्री और यू नो योर डाइट, आपको पता है कि डेली आई टेक 4 चपातीज और 5 चपातीज, सो these 4 चपातीज और 5 चपातीज इज योर टोटल यूटिलिटी। वेरी सिंपल लैंग्वेज, आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 4 चपातीज की है। सो दैट इज व्हाट इज सेड, एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टेकन टुगेदर इन कंजम्पशन एट ए टाइम। मतलब आपको टोटल यूटिलिटी को अगर समझना है तो सबसे पहले वो क्या है, एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। नाउ हाउ इंडिविजुअल अर्निंग और एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन, बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टेकन एट ए टाइम टुगेदर। ये चारों चपातीज अगर आप एक साथ में खाते हो तो ही आप टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट को समझ सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, 4 चपातीज द डाइट ऑफ यू, मतलब आपका जो टोटल डाइट है वो 4 चपातीज का है, दैट इज व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। वो 4 चपातीज अगर आप एक साथ में खाते हो, देन ओनली द इम्पोर्टेंस और द एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टेकन टुगेदर इन कंजम्पशन एट ए टाइम, दैट इज व्हाट इज टोटल यूटिलिटी। The sum of utility derived from units of a commodity, that is what is meaning of total utility. So समझ में आ गया अभी टोटल यूटिलिटी क्या है। अगर आप 4 चपातीस को एक साथ में खाते हो, देन ओनली यू कैन से माई टोटल यूटिलिटी इज सच एंड सच नंबर ऑफ कमोडिटी और सच एंड सच नंबर ऑफ product. Okay, so it is represented with the term TU. Now the concept of marginal utility. Marginal utility क्या है, marginal utility may be defined as the successive increment made in total utility. जैसे कि आपकी total utility कितनी थी, 4 चपातीस की थी, आपने extra 1 more चपाती you have added into total utility, that is what is marginal utility. करेक्ट है, समझ में आ रहा है। ओके, इट इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड और एक्वायर्ड टुगेदर। 4 चपाती के साथ में हो सकता है कि आज आपके घर में कुछ स्वीट बना है या फिर ऐसा कुछ आइटम बना है कि जो आपको बहुत पसंद आता है, तो क्या करोगे आप, एक एक्स्ट्रा और चपाती खाओगे। सो दैट एक्स्ट्रा चपाती इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट of any commodity consumed or acquired together, it's called marginal utility. Correct? Now the concept of marginal utility we will understand with the help of curve. यहाँ पे पहले क्या है, आपको टेबल दिया है। The table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in consumption. Further it becomes 0 and then negative. When it was unit 1, total marginal utility was 10. When unit was 2, it was 8. Likewise, up to the 6th unit, it becomes 0. So that 0 which is shown at the here on y-axis and x-axis. On y-axis, it is a marginal utility. Okay. Now this curve, that particular line of marginal utility at point number 7, it shows that point of particular at 7, 1 2 3 4 5 at the 5th point. From here it is goes on diminishing or it is reducing. मतलब 7 नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है वहां पे क्या है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन वो पर्टिकुलर, जैसे कि आपको भी बताया, 4 चपाती आपका फुल डाइट है, 4 चपाती में आपका पेट भर जाता है। बट इफ यू टेक एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी, एक 5वीं चपाती आपने खा ली और एक 6वीं चपाती खा ली, तो क्या होगा, आपकी यूटिलिटी में क्या होगा, मिनिमाइज होते जाएगा, वो डिमिनिश होते जाएगा या कम होते जाएगा। एट वन पॉइंट क्या होगा, आप जितना ज़्यादा खाओगे एक टाइम पे आपको उल्टी आएगी, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए 0 या निगेटिव हो जाएगी। करेक्ट है, दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। ओके, वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आल्सो। फॉर this session it is sufficient. We will again move on to our next session.